Naveen sir, good morning, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Sir, here from my side, one of the issues there, light power problem. At present, I connected my mobile phone and UPS is there little bit time. No problem, sir. You can take for how much time it is there. Okay, sir. Okay, sir. Then if it is possible, then I can already started the laptop also. After discharge of this UPS, I can connect with mobile laptop. Okay, sir. You can start immediately. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, all of you. Good morning to everybody. In last class, we had discussed about the arrays. Array is also one of the memory variable. It can store more than one value. कल का क्लास में हम array का अंदर बातचीत किया है, तो array के बारे में बातचीत की हम लोगों ने. फिर array भी एक मेमोरी वेरिएबल है. एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम array को काम में लेते हैं. फिर अब रोबिन सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? विजिबल है सर, विजिबल है. थैंक यू सर, थैंक यू सर. हाँ देखिए मोबाइल Okay, friends. Sorry for the interruption. I want to connect my internet. विपिन सर, मैं पावर आया हुआ है, मैं ऑफिस इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता हूँ. तो कर लीजिए सर. हाँ, थैंक यू सर. प्लीज 2 मिनट टाइम दे दीजिए. आप थोड़ा ये देखते रहना सर, क्योंकि एक बार सेट होने के बाद इंटरनेट कनेक्ट है. Okay. Today we will discuss about the two-dimensional array. आज का क्लास में हम दो डायमेंशनल array के बारे में बातचीत करेंगे. साथ साथ एक array के अंदर मल्टी डाटा टाइप कैसे स्टोर कर सकते हैं. How you can store multi data types in a single array. एक ही array के अंदर अलग अलग डाटा उसको भी कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, ये चीज भी आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे. मोबाइल जाने छूट रहा नहीं. Robin sir, voice and screen sharing is it okay? Clear sir, it is clear. Okay sir. Now I am continuing क्योंकि reset किया ना मैंने. We can see your Excel sheet sir. हाँ sir, okay sir, thank you sir. So in last class we had discussed it. So how to declare an array? Array को हम कैसे declare कर सकते हैं? Keyboard.
keyboard error issued. Now it is detected. If you want to declare an array, same like in a variable dim name as data type. So here simple variable declare करने के लिए dim as name as string, or in the same way if you want to discuss the same thing as an array, dim as name of file as string. So the difference is normal variable and array is the subscription array size. मैं ये बताना चाहता हूँ, सपोज एक साधारण वेरिएबल को जैसे हम डिक्लेयर करते हैं उसी तरह ही एरे को भी डिक्लेयर करते हैं डिम स्टेटमेंट का सहायता से, लेकिन अंतर ये है सिंगल वेरिएबल एरे के बीच में एरे है तो विद इन द ब्रैकेट्स में साइज बताना पड़ेगा बस फिगर. इफ यू वांट टू स्टोर 10 एलिमेंट्स ब्रैकेट्स के अंदर 10, लेकिन ईपीए के अंदर एक फीचर है 0 से लेकर अप टू n एलिमेंट्स तक आप स्टोर कर सकते हैं. Zero subscript is also there, zero index. Okay, suppose if you are declared sname as of 5 as a string, that means we can able to store 0 to 5 total 6 elements, 6 names like this. These things you are completed in the last class. Yesterday class we have discussed all these things. Okay, what happened? I don't, my screen is, keyboard is not moving. No problem, but today we will discuss multi-dimensional array as well as how to store more, means different data types in a single array. Okay, that purpose, suppose if you want to store different values, then simple thing is this Excel at the time of declaring array dim suppose items, sorry please wait, I can change the keyboard. Sorry, this some of the issues are occurred. Right and keyboard something. If you want to declare, you want to store more multiple data types in a single array, then the procedure is same, dim then particular array name item. For example, item is one of the array, then within the bracket you can mention the size, suppose 10, then after that leave it as Disney, means इतना ही लिखना है, dim array name within the size as data type, mention करने के लिए जरूरत नहीं. There is no need to mention the data type. If you mention data type, then it can store only the same type of data only. मतलब क्या, ये स्टेटमेंट का आगे as integer लिखा है तो फिर केवल इंटीजर वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं. अगर मोर स्टूडेंट्स नेम्स मान लीजिए ना, तो बुक्स नेम्स, एम्प्लॉय नेम EMP, एम्प्लॉय नेम से एक एरे 50, एम्प्लॉय नेम as string, then what happened, एम्प्लॉय नेम नाम से एक एरे बना देगा, लेकिन उसके अंदर 0 से लेकर 50 टोटल 51 एम्प्लॉयज नेम्स को हम स्टोर कर सकते हो, लेकिन सारे स्ट्रिंग टाइप डाटा है. मिक्स्ड टाइप मींस डिफरेंट डाटा टाइप्स डाटा को स्टोर करने के लिए dim then array name x y z, then within the bracket suppose 20, then simply leave it, then it can accept
different types of data types data. 0 से लेकर 20 तक वैल्यू को स्टोर करेगा, लेकिन अलग अलग डाटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं हम। कल का क्लास में क्या किया हमने, नेम्स है तो केवल नेम स्टोर करते थे। फिर नंबर्स के लिए एज इंटीजर डिक्लेयर किया हमने, 10 नंबर्स को रीड किया, फिर प्रिंट किया है सम भी एवरेज भी। So in last class we are written a program for to read 10 random numbers in an array, and after that these elements which are stored in the array will are transferred into the MS Excel sheet. That means we will display the same values in an Excel sheet, and after that you are finding the sum total as well as average also. हमने 10 अलग अलग नंबर्स को रीड किया है, सेम डाटा टाइप इंटीजर, एक एरे के अंदर रखा है, एन के अंदर। फिर फर्स्ट लूप में, सेकंड लूप में क्या किया है, 10 एरे के अंदर जो भी 10 नंबर हमने रीड किया उसको एक्सेल शीट पर प्रिंट किया, सेल्स i कामा 1 डॉट वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू n ऑफ i, फिर सम किया है, आफ्टर एवरेज भी कैलकुलेट करके रखा। एक स्टूडेंट ने भी पूछा है तो मैंने बताया, पूजा नाम से स्टूडेंट। तो अब मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, एक ही डाटा टाइप का, ये तो सारे न्यूमेरिक डाटा है, फर्स्ट में क्या सारे स्ट्रिंग्स। अब मैं जो बताना चाहता हूं डिफरेंट वैल्यूज को रीड करने के लिए, ओके अभी एक प्रोग्राम लिखेंगे हम। एक देखिए आप लोगों के सामने मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूं। आई वांट टू राइट ए प्रोग्राम। मेन पर्पस इज टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, मींस स्ट्रिंग, इंटीजर, डेट डाटा, लाइक ओके। So sub procedure, then x y z, you can give anyone any name. Then I want to declare array, that is general नाम से एक array को डिक्लेयर करना चाहता हूं। general only 5, if you declare 10 20 it will take time. We want to discuss the multidimensional array also today. So here as, and so bus dim general size and simply leave it. There is no need to mention data type. Then after that dim I as integer, loop चलाने के लिए एक काउंटर वेरिएबल कुछ काम में लिया। for I is equal to 1 to 5, then रीड करना है हम। रीड करने के बाद कहाँ स्टोर करना है, एरे के अंदर। तो जनरल ऑफ i इज इक्वल टू, अगर i वैल्यू 1 है तो जनरल ऑफ 1, i वैल्यू 2 है तो जनरल ऑफ 2, लाइक दैट। इनपुट बॉक्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, कीबोर्ड से रीड करने के लिए इनपुट बॉक्स, फिर आगे कोटेशन के अंदर फिर ये लिखते हैं हम, एंटर एनी वैल्यू, एनी डाटा वैल्यू। Next I, this is the reading loop। कीबोर्ड से अलग अलग रैंडम वैल्यूज को रीड करने के लिए साथ साथ अलग अलग डाटा टाइप्स को भी। तो रीड करने के बाद डिस्प्ले करने के लिए लिखना है लूप सेम 1 to 5। एक्सेल शीट्स के अंदर लिखने के लिए सेल्स, अगर अभी हम डी कॉलम में डिस्प्ले करना है ABCD 4, ई में डिस्प्ले करना है तो 5, चलो ई कॉलम में डिस्प्ले करेंगे। तो आई वैल्यू तो 1, दैट मींस रो 1 2 3 4, so that will be represented by I। ई कॉलम के लिए 5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, तो हमारा डाटा कहां पर, where you are stored our data, we are stored general array, so that is called a general of I। बस एक्सेल शीट पर जाके फिर हम इस डी पर डाटा देखेंगे, हम रन करके देखते हैं। एंटर एनी डाटा, ओके फर्स्ट नेम 1 2 3, नंबर मान लीजिए, ट्रेड कोपा, टुडे डेट इज 9/6/20, please trade S or no, suppose S,
Get here. Here through this program, we'll try to understand the concept. An array can store multiple data types. VBA के अंदर array के अंदर हम एक ही array के अंदर अलग अलग डाटा टाइप वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं. ये डेट है, स्ट्रिंग, नंबर. At present here logical yes or no लिखा हमने. Okay, so this is the concept to store multiple यानी different data types values in a single array. So I want to show the coding here. This is the procedure to store different data element, not data items. ये single array. फर्स्ट क्लास yesterday क्लास में क्या देखा हमने? या तो सारे स्ट्रिंग्स, सारे नंबर्स, लेकिन अभी क्या क्या है? मिक्स्ड डाटा को स्टोर किया. एरे नाम एक ही है, जनरल. Okay, so make it screenshot और फोटो for practice purpose. ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं. This is the procedure coding, the result. So I think you people sir understand dem general of 5 0 से 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक एरे डिक्लेयर किया, लेकिन डाटा टाइप नहीं बताया मैंने. उसी का द्वारा डाटा टाइप नहीं बताने के कारण से हम अलग अलग डाटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. विदाउट मेंशनिंग द डाटा टाइप we can store different data types of values. dim I as integer, counter variable I single variable, integer type है, डिक्लेयर किया हमने. for I is equal to 1 to 5 सबको पता है. I 1 से शुरू करेगा 5 तक, यानी 5 बार रिपीट करेगा. ठीक है. तो कल का क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा, सर जी जीरो को भी हम स्टोर में काम में ले सकते हैं. अगर जीरो वैल्यू को स्टोर करना है आपको, देखिए जीरो पर I is equal to 0 to 5, लेकिन एक्सेल सीट पर जीरो रो तो है नहीं, तो जीरो रो नहीं तो क्या करना भी, इधर रीडिंग तो ऐसे करेगा ये डिस्प्ले करने के लिए I+1 लिखना. I वैल्यू 0 है तो 1, 0 + 1 फर्स्ट रो में डिस्प्ले करेगा. I वैल्यू 2 है तो 0, 2 + 1 3, इस तरह बढ़ेगा. I वैल्यू 0 होने के बाद रो 1, 0 + 1 1. I वैल्यू 1 होने के समय पर रो वैल्यू 2, 1 + 1 2, इस तरह. तो दैट इज मैनेजेबल बाय द प्रोग्रामर. ऐसे ये तो जीरो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं. आई वैल्यू 0 मींस जीरो वैल्यू प्रिंट कर देते, जीरो सबस्क्रिप्ट. अब रीड करेंगे हम, देखते हैं. ये डाटा भी मैं हटा रहा हूँ. लास्ट टाइम पूजन आस्क्ड वन क्वेश्चन, सर इन VBA can we able to store the zero subscript element? Yes, we can store it. To that purpose, look at here. Entire procedure same, zero declaration same, but here I is equal to 0 to 5, 0 से 5 तक रीड करना है. तो जनरल ऑफ 0 ले लेगा. रीडिंग तक ठीक, reading up to reading it is okay. There is no need to change anything. For printing purpose, I is equal to 0 means there is no 0 row in MS Excel worksheet. So row number will be starting from the 1. So due to that reason, I value 0 I plus 1, 0 plus 1 1 होगा. I value 1 है तो 1 plus 1 2. Column तो same. Fifth means E column. Okay, we can run and check the results. Suppose we are giving name. Then after that, we are saying Copa 580 Noida. Suppose नहीं तो Osler no. You can give any data type. न्यू अशोक नगर दिल्ली. देखिए 777 Riya Singh Copa date. Then after that this one. Then न्यू अशोक नगर दिल्ली.
here what I'm telling, there are 6 values are stored, 1 to 6. We are declared 5, so 0 से लेकर 5 टोटल 6. ये मतलब 0 एलिमेंट को भी हम स्टोर कर सकते हैं. 777 will be stored in the general of 0. I think you people sir understand. आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा रखता हूँ. ये 777 कहाँ से आया हुआ है तो बढ़ा देते हैं. यह है जनरल नाम से हमने क्या किया, एरे डिक्लेयर किया, JENERAL, जनरल ऑफ, ये 0 है. मेमोरी का अंदर स्टोर करते समय पर हमने कीबोर्ड से अलग अलग वैल्यूज को दे रहे हैं. प्रोग्राम रन करते समय पर we are given or we are reading randomly different values, but internally in computer memory it can store like this: general of 0 777, general of 1 Riya Singh, general of 2 Popa, general of 3 some data पर जो भी है. After that yes or no 5 न्यू अशोकनगर 0 से लेकर 5 मेंस है, 0 to 5 total 6 items. Again confirmation purpose I just removed here. I want to run once again. मैं दोबारा रन करके चेक करना चाहता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है. देखिए यही कोडिंग मैंने बाहर भी लिख रहा. Now I want to execute, enter any data type. Okay, triplet, मोहिनी मिश्रा, CSA, $495. You can enter any type of data only for practice purpose. This is the previously we are already selected the data type and first time. So due to that reason it can display here. So in MS Excel I think we know then the already date format पहले है 495 marks दिया. Okay. Yes, sir. But our aim is we want to try to understand this concept. 0 subscript also accepted means available in the VBA. It can store the first element in the 0 subscript. Then 1, 2, 3, 4 up to n. Generally, we are ignoring the 0 element because 0 row is not available. But as a programmer, I can manage that one. I plus 1 लिखा, I 0 है ना तो 0 plus 1 first time. I subscript तो 0 है लेकिन रो के लिए 0 plus 1 1 हो जाएगा. So first रो पर डिस्प्ले कर रहे हैं. Okay. Now, so we will discuss about, we want to enter into the double dimensional array. Double dimensional array के बारे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि already 30 minutes finish. I want to show another. Friends, I want to save the time. In double dimension array, they are having 2 dimensions. First dimension is row, second dimension is columns. Suppose if you are mentioning like this, if it is an array, then 1, 2, 3, 4. Okay, this is called as double dimensional array. 2 dimensional array अंदर क्या है, इसका डिक्लेरेशन करते समय पर हम इस तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा. dim array name उतना तक same, up to that same, up to previous stage we are declared only one
dimension, single dimension, but here 2 dimensions, rows and columns. आगे as data type, that is same. मतलब क्या, 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते समय पर एरे के अंदर दो डायमेंशंस को बताना पड़ेगा. फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज, सेकंड value will represent the number of columns of a 2-dimensional array or multi-dimensional. Okay, a 2-dimensional array having 2 dimensions. First dimension is row, second dimension is column. 2-dimensional array के अंदर 2 dimensions को बताना पड़ेगा. पहली डायमेंशन रोज के लिए, सेकंड डायमेंशन कॉलम के लिए. यानी फर्स्ट संख्या, फर्स्ट फिगर रोज, नंबर ऑफ रोज कितना बताता है. सेकंड संख्या है नंबर ऑफ कॉलम्स. डिम ये of a2 comma 2 as integer. Dim is full form is dimensional, use it to declare an variable or array. Okay, so a is our array name. 2 comma 2 means 2-dimensional array. First 2 will indicate the number of rows, that means 0 से लेके 1 2 ये है rows, 3 rows. बाद में जो 2, that will second 2 will indicate number of columns. Again column also 0 से लेकर 1 2. So a of 2 comma 2 means a is my array name. First 2 will represent like this: 0 1 2, total 3 rows. Again second 2 means dimension 2 will indicate the column 0 1 2. Then the intersection point 0 comma 0, first subscription. 0 row, first column. 0 row, second column. Like that. First row, 0 column. First row, first column. First row, second column. Like second row, 0 column. Second row, first column. So this is the internal storage concept of a 2-dimensional array. अगर हम array को दो डायमेंशन में हमने डिक्लेयर किया है, तो इसी तरह मेमोरी के अंदर एलोकेशंस रिजर्व करके रखते हैं. फिर एक एक सब्सक्रिप्ट के अंदर हम एक एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. सो कॉलम्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसको हम सेल्स के अंदर 1 2 3 4 5 लाइक इस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. हमको पता है ए मींस फर्स्ट कॉलम, बी मींस सेकंड, सी मींस थर्ड कॉलम वैल्यू, ई मींस कॉलम वैल्यू 4, ई मींस कॉलम वैल्यू 5. 1 2 3 4 5 ये रो तो सबको पता है, नॉर्मल नंबर्स. सो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट थिंग. In multi-dimensional arrays or in the loops we are using in place of range command cells command. Cells में क्या है, row comma column, ये concept है. Okay, so here so row 1 2 3 column 1 2 3, due to that reason we are using this area, we are ignoring temporarily zeros columns and zeros rows. So 1 comma 1 1 comma 2 means first row first column, first row second column. 2 comma 1 means second row first column, 2 comma 2 means second row second column. Generally suppose in every student up to 10th they are studying matrix in mathematics. So matrix having columns and rows. So this is suppose 1 2 3 4, this is one of the matrix. So if you want to store these values in our programming concept, C++ or VBA, Java, in every language array concept is there. So here with the help of 2-dimensional array we can store matrix or employee code and employee name, student roll number and name, or student name and marks, like that. Okay, so now in programming how can you declare like this one? Dim statement, array name, row number of rows comma columns as data type. Remaining with the help of loops we can do these things. Okay, so I am inserting a new, I think you people sir understand, आपको समझ में आया होगा. 1 comma 1 means this location, 1 comma 2 means this one. अगर जीरोस इग्नोर कर दिया तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं. देखिए 1 comma 1 का अंदर 10, 1 comma 2 का अंदर 20, 1 2 comma 1 का 30 40. हम कीबोर्ड से इनपुट से रीड कर सकते हैं, हम फिर प्रिंट भी कर सकते हैं. ओके, सो आई एम इंसर्टिंग न्यू मींस वर्कशीट. This one is sheet 25, developer, Visual Basic.
फिर 25. Okay, now SUB means सब प्रोसीजर. मैट्रिक्स के लिए हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स. Okay, just procedure name. First of all, we will try to understand one matrix, how to declare and how to read the elements. Then after that, addition, subtraction. dim A नाम से एक मैट्रिक्स को मैं I want to declare matrix name is A. So matrix name A of 2 by 2, 2 comma 2 as integer. So rows and columns they to dim I comma j as integer. Then with the help of for loop you can read the elements. For I is equal to 1 to 2. एक से लेकर 2 तक मीन्स जीरोस को छोड़ दिया हमने ये रो के लिए. फिर कॉलम के लिए for j is equal to 1 to 2. Then करना है क्या? What we want to do, हम क्या करना चाहते हैं? रीडिंग. तो इनपुट बॉक्स से रीड करता है, लेकिन रीड करने के बाद कहाँ स्टोर करना है? मैट्रिक्स ए का अंदर. सो लेफ्ट साइड एरे या तो वेरिएबल नेम. हमारा एरे क्या? ये. फिर सब्सक्रिप्शन कैसे, इंडेक्स कैसे बताते हैं हम? सब्सक्रिप्ट वैल्यू आई रो कामा जे कॉलम इज इक्वल टू करना है क्या? रीड करना है इनपुट बॉक्स. फिर एंटर एनी वैल्यू. इनपुट बॉक्स से हम रीड कर रहे हैं. फर्स्ट जे लूप देखिए, जे लूप को प्लीज ऑब्जर्व या जे को इंक्रीमेंट करने का इंटरनल लूप. फिर आउटर लूप, एक्सटर्नल लूप. बाहर लूप क्या है? फर्स्ट लूप आई. तो आई को बाद में इंक्रीमेंट करना है. यानी फॉर लूप आई से शुरू किया तो फर्स्ट नेक्स्ट आई, फिर बाद में नेक्स्ट जे. दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट. यू कैन इंक्रीमेंट द इंटरनल लूप or you can close the internal loop and after that external loop. Okay, so this is the reading. रीड करने के लिए, रीड करने के बाद एक्सेल शीट पर प्रिंट करना है. इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम. अभी भी देखो मॉर्निंग में for i is equal to 1 to 2, j is equal to 1 to 2. एक्सेल शीट पर प्रिंट करने के लिए सेल्स i comma j. i वैल्यू 1 है तो फर्स्ट रो, j वैल्यू 1 मींस ये कॉलम i comma j डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डाटा कहां से लेकर आना है? ये ऑफ i कामा j. जो हमने मैट्रिक्स डिक्लेयर किया है उस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज को एक्सेल शीट पर प्रिंट करना है. ठीक है. सो नाउ वी विल एग्जीक्यूट. अभी हम रन करके देखिए. एंटर एनी वैल्यू 10 20 30 40 एक्सेल शीट पर ये देखिए 20 30 सॉरी 10 20 30 40 लाइक दैट. तो ये कहां सा एरे का ये मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स रीड करने के लिए ये डिक्लेयर किया हमने. तो जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया आप लोगों को येलो कलर से, सो उसी का दौर आप समझ सकते हो जल्दी से जल्दी समझने के लिए. ये वाली 1 कामा 1 1 कामा 2 लाइक दैट. ठीक है. सो इसके अंदर इस तरह स्टोर किया है. फिर थ्रू कोडिंग मैंने डिस्प्ले किया. अभी दोबारा फ्रेशली लिखा. आई जस्ट रिटन बाय प्रोग्राम न्यूली बिकॉज यू पीपल्स पर्पस, आप लोगों के लिए समझने के लिए दोबारा मैंने लिखा है. ये एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे, मतलब डिक्लेरेशन के साथ एलिमेंट्स को कैसे रीड कर सकते हैं, फिर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं. इसलिए मैंने गैप दिया ये है ना, इंटरनल पर्पस फॉर अंडरस्टैंडिंग. इस फर्स्ट लूप के अंदर फर्स्ट क्या किया हमने? एक प्रोसीजर नाम मैट्रिक्स सब प्रोसीजर dim of 2 comma 2 मींस ये एक डबल मैट्रिक्स डिक्लेयर किया हमने 2 डायमेंशनल एरे को. उसके अंदर 0 से 2 3 रो को ले सकते, लेकिन हम 2 रो को लिया 1 2 2 rows and 2 columns. dim i comma j as integer 2 internal counter variables. फिर for i is equal to 1 to 2 for लूप चला रहे हम, इसलिए ये रोज के लिए
For j is equal to 1 to 2, a columns purpose. For I is equal to 1 I comma j means first time what happened? First time what happened? I value 1, j value 1. So I value 1, j value 1 होने के बाद इधर क्या होगा? प्लीज आप लोगों कृपया ध्यान दीजिए. I value 1 comma j value 1, a of 1 comma 1. एक नंबर 10 देते तो तब 10 a of 1 comma 1 में इस पर्टिकुलर देखिए 1 comma 1. 1 रो कॉलम a मींस वो भी 1 है. मैं जानबूझ के गैप दिया, अगर फिर रो नंबर बदलेगा कंफ्यूज हो जाएंगे. 1 रो 1 कॉलम a, that means 1 10 will be stored area. Then after that next j होने के कारण से loop will go to the beginning of the j loop. फिर second time क्या होगा? j is equal to 2 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आ जाएगा i कामा j, i वैल्यू 1, फिर इस बार j वैल्यू 2, a of 1 कामा 2. 1 मींस रो, 2 मींस सेकंड कॉलम b. सेकंड टाइम हम 20 देने की वजह से इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एक्चुअली एरे के अंदर मेमोरी में स्टोर करेगा वो, फिर बाद में इस लूप का सहायता से प्रिंट कर रहा है. एरे के अंदर इस तरह स्टोर करता रहता है. फिर नेक्स्ट j होने के कारण से j मींस नेक्स्ट j मींस 2 का बाद 3 इंक्रीमेंट हो गया, फिर बिगिनिंग लूप का आरंभ स्थिति पर चलेगा वो. 3 to 2 सीमा से बाहर आ गया. 3 to 2 मींस आउट ऑफ रेंज, कंडीशन फेल. जब कंडीशन फेल है तो लूप से बाहर आने के बाद नेक्स्ट आई मींस आई वैल्यू 1 चल रहा है ऊपर, तो इस बार क्या होगा? आई वैल्यू इज इक्वल टू 2 to 2 condition true. Then again it will enter to the internal loop. J is equal to 1 to 2 condition true. फिर इस बार क्या होगा? इधर i comma j, i value 2 होगा, j value 1. So that means ये रहा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 30 एंट्री किया हमने, 30 स्टोर करेगा रहेगा. फिर नेक्स्ट j होने के कारण से j वैल्यू बढ़ेगा 2, तो 2 to 2 कंडीशन ट्रू. अंदर आने के बाद ये i वैल्यू 2, j वैल्यू 2. सो फिर इस टाइम हमने 40 टाइप किया है. सो i वैल्यू 2, j वैल्यू 2 मींस i वैल्यू 2 देंगे ये, लेकिन j वैल्यू 2 होने के कारण से b इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर 40 को स्टोर कर. फिर नेक्स्ट j वैल्यू इंक्रीमेंटेड मींस j इज इक्वल टू 3, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप. अब क्या हुआ? j वैल्यू 3 होने के कारण से 3 to 2 कंडीशन फेल है. बाहर आने के बाद नेक्स्ट i वैल्यू क्या? अभी ऑलरेडी i वैल्यू ऊपर तो 2 है, 3 होगा. विल गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप. 3 to 2 आउट ऑफ रेंज, सीमा से बाहर, कंडीशन फेल, सो i से बाहर आ जाते हैं. ठीक है. हेलो, ఆనే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్తాను, మళ్ళీ ఫోన్. फ्रेंड्स सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो ये है इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे. मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करेगा. फिर इसका साथ यही है फॉर i इज इक्वल टू 1 to 2, फिर j इज इक्वल टू 1 to 2. सेम कॉन्सेप्ट है. सेल्स i कामा 1, 1 कामा 1 मींस इसको रिप्रेजेंट करता है. ये का अंदर एरे में जो भी वैल्यू इधर लिख रहा है, अब मैं मिटाने के बाद और एक बार रन करता तब तो समझ में आएगा. वी विल ट्राई टू रन वंस अगेन. दोबारा हम रन करेंगे. देखिए कोडिंग यही है. कैन गिव एनी नंबर्स. 100 फर्स्ट टाइम, 500, 100, 500, then downward 250, okay, then 750, 100, 500, 250, 750. एक देखिए एरे डिक्लेयर किया हमने 2 by 2.
तो काउंटर वेरिएबल्स को हमने काम में लिया, फॉर i इक्वल टू 1 to 2, फॉर j इक्वल टू 1 to 2, रीडिंग ऑफ द मैट्रिक्स ये, फिर डिस्प्ले। अब हम क्या करेंगे, टू मैट्रिक्स को रीड करके फिर दोनों मैट्रिक्स को रीड करना मतलब इस कोड को कॉपी करना है, मैट्रिक्स एक जगह पर भी लिखेंगे फिर, लेकिन दोनों को जोड़ के फिर रिजल्ट डिस्प्ले करें। Now we are going to do addition of two matrix. Okay, so now please look at here. Before going to that one, I want to show here. This is the 3 by 3 matrix. Will take time, na? J is equal to 1 2 like that. I is equal to 2 loops. But that is not. My aim is I want to show the two matrix additions also. Last time, this is the first matrix, second matrix. Then addition 1 plus 5 6, 2 plus 6 8 like that. We can write the coding. Suppose simply first 2 by 2 लिखेंगे फिर 3 by 3. Concept समझ आ रही, तो हम 2 by 2 के लिए बातचीत कर रहे हैं. We are discussing about the 2 by 2. So I want to continue the 2 by 2 matrix only. So first dim A of 2 comma 2 comma second matrix declare करने के लिए B 2 by 2 means second matrix B. Result C का अंदर third matrix 2 by 2. Okay, just I increase the number of arrays. Elements को बढ़ाया नहीं मैंने, arrays को बढ़ाया. First array means first matrix A, double dimensional array, 2 dimensional. B again 2 by 2 means 2 dimensional array. C third. So first two matrix को first matrix element A का अंदर, second matrix element B का अंदर स्टोर करेंगे, फिर इन दोनों का ऐड करने के बाद रिजल्ट C का अंदर स्टोर करेंगे. इसलिए तीन मैट्रिक्स को मैंने डिक्लेयर किया. कंट्रोल लूप्स तो यही है, लेकिन अब फर्स्ट मैट्रिक्स को हमें पता चल गया रीड करने के लिए. इसी तरह वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टू हाउ टू रीड ए मैट्रिक्स एलिमेंट. सो फर्स्ट मैट्रिक्स को रीड करने के जैसे ही सेकंड मैट्रिक्स को हम रीड करेंगे, सिर्फ मात्र एक जगह पर बी लिखना है. और आपको क्लैरिटी के लिए एंटर ए मैट्रिक्स एलिमेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स हम रीड कर रहे हैं. ओके, देन बी के अंदर रीड कर रहे हैं तो सेकंड मैट्रिक्स एंटर बी मैट्रिक्स एलिमेंट्स. ओके, देन ये तो डिस्प्ले करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने डिस्प्ले किया. इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेंगे. सेकंड मैट्रिक्स को कहाँ डिस्प्ले करना है, फर्स्ट में i कामा j i12 j12. लेकिन अगर हमें समझने के लिए c को जोड़ के फिर d पर प्रिंट करेंगे. कॉलम्स वैल्यू लिख रहा हूं मैं नीचे, a को तो 1, b 2, c means 3, d means 4, 5, e means f 6 7 like that. These are the corresponding column values, क्योंकि लूप के अंदर हम मेंटेन करना पड़ेगा. तो मैं तीसरी कॉलम को छोड़ के चौथी कॉलम में डिस्प्ले करना चाहता हूँ सेकंड मैट्रिक्स, यानी रो का अंदर कोई चेंजेस नहीं है, रो 1 है, कॉलम 1 का जगह पर 4 पर डिस्प्ले करना है. ऑलरेडी मेरे पास 1 है जे वैल्यू, जे को 3 जोड़ने के बाद 4 पर आ जाएगा. मतलब ये देखिए, ये तीनों जोड़ने के बाद चौथी कॉलम पर आएंगे. अगर जे वैल्यू 1 है तो 1 प्लस जे वैल्यू फर्स्ट टाइम लूप में 1 से चला रहे हैं हम, लेकिन प्रिंट करने के लिए जे का जगह पर हम क्या लिखेंगे, जे प्लस 3. दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्या होगा, 1 प्लस 3 देन 4. 4 मीन्स डी कॉलम. ओके, नाउ अगर इसी में स्क्रीन पर आपको दिखना है, चेंज करना है प्रिंट करने के लिए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया ना सेकंड मैट्रिक्स के लिए. i is equal to 1 to 2, j is equal to 1 to 2 तो रहेगा. लूप कंट्रोलिंग डिस्प्ले करते समय पर सेल्स i कामा j प्लस 3 लिखना था, बस इतना है. इधर कौन सी मैट्रिक्स डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन पर, बी मैट्रिक्स. अब कोडिंग में जा रहा हूँ. देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स रीडिंग, सेकंड मैट्रिक्स रीडिंग, बी चेंज किया, बस बाकी प्रोसीजर सेम. एक जगह पर बी. फर्स्ट मैट्रिक्स डिस्प्ले के लिए ये लिखा है 1 कामा 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, ए कामा बी, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम बी. अब सेकंड मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रोसीजर सेम, 1 to 2, j is equal to 1 to 2, लेकिन j का जगह पर प्लस 3 लिखना सेकंड मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए बी. देन अभी हम रिजल्ट के लिए बाद में लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब तो समझ में आ जाएगा. ये भी मिटा रहा हूं मैं.
अब मेरे पास कुछ भी नहीं है स्क्रीन पर, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, रिजल्ट देखेंगे हम। अब रन कर रहा हूं मैं, देखिए 1 फर्स्ट में एंटर ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, एंटर बी मैट्रिक्स 5 6 7 8। अब रिजल्ट शीट पर जाके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए 4 लिखा है ना, कोडिंग का अंदर हमने लिखा J+3, तो कॉलम वैल्यू 4 हो गया है। भले J फर्स्ट टाइम आई 1 J वैल्यू 1 दिखा रहा है, लेकिन इंटरनली हमने मैनेज किया J+3 लिखने की वजह से J वैल्यू 1 + 3 = 4। 4 मींस इनडायरेक्टली D कॉलम, सो D कॉलम में प्रिंट करना है, ताकि हमें दो मैट्रिक्स के रूप में देखने के लिए वी वांट टू सी एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में देखने के लिए जानबूझ के मैंने C कॉलम को गैप दिया है। अब F को छोड़ के G पर प्रिंट करना है, तो G मींस 7, मेरा J वैल्यू 1 है, तो 7 तक पहुंचने के लिए आपको दिस ऐड करना पड़ेगा, यानी J+6 = 7। J वैल्यू 1 है तो 1 + 6 = 7। थर्ड मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए कृपया ध्यान दीजिए, प्लीज कंसंट्रेट ऑन हियर। थर्ड मैट्रिक्स डिस्प्ले पर्पस वी आर मैनेजिंग कॉलम्स ओनली, रो तो सेम, क्या करना है कॉलम्स की जगह पर G पर प्रिंट करने के लिए J+6 लिखते हैं हम, सो 6 तक ऑलरेडी छोड़ रहे हैं हम, 7th में प्रिंट कर रहे हैं, सो G पर प्रिंट करने के लिए J+6, लेकिन C मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना, लेकिन C मैट्रिक्स के अंदर अभी तो कुछ नहीं है, 0 0 0 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 से ऐड कर देते हैं वो। अगर वो भी प्रूफ करना देखना है तो देखते हैं हम अभी C मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेंगे। C मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए क्या, इसको कॉपी कर देते हैं, वी आर कॉपीइंग, देखिए एंड शब्द तो है नीचे, डोंट कंफ्यूज, पर I = 1 J अब तो नजदीक रख सकता हूँ, यू आर अंडरस्टैंड, मैं कंफ्यूज हटाने के लिए अभी ना, ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स रीडिंग, सेकंड मैट्रिक्स रीडिंग, फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंटिंग, सेकंड मैट्रिक्स प्रिंटिंग, देन थर्ड मैट्रिक्स C मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा हूं। सम तो किया नहीं, आपको समझाने के लिए असली में होता क्या है। J+6 मींस 7th रो पर G पर C मैट्रिक्स, बाय डिफॉल्ट क्या होता है TBA के अंदर, whenever you created an variable integer variable, automatically by default it can store the zeros। देखते हैं, now we are reading and 10 new elements 9 8 7 6, first matrix complete, 5 4 3 2, excel sheet पर ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0। ये 0 0 कहां से आया, जब हम एक एरे को डिक्लेयर किया है C2,2, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर मेन मेमोरी रैम का अंदर 0 0 स्टोर कर देता है, VBA का अंदर न्यूमेरिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब 0 0 नहीं आना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का रिजल्ट आना चाहिए। सो दोनों मैट्रिक्स रिजल्ट के लिए क्या है, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं ना कैलकुलेशन पार्ट को, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, for I = 1 to 2, for J = 1 to 2, एडिंग के लिए ऐड करके कहाँ रखना है, C का हमेशा लेफ्ट साइड, किसका अंदर स्टोर करना है वो लिखना है, तो मैं एक C का अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, I, J, सेम प्रोसीजर, देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स को रीड करता था A, of I, J, नहीं तो B of I, J, हियर C of I, J, लेकिन C of I, J के अंदर क्या होना चाहिए, A of I, J, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट प्लस एडिशन के लिए B of I, J, ऐसे डायरेक्टली कई बार जोड़ दिया तो फिर 1 1 आ जाएगा सामने, वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते, वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न्स द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि प्लस कॉन्कनेट ऑपरेटर माना जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्कनेट ऑपरेटर्स इन VBA, वन इज प्लस, सेकंड वन इज एंड सिंबल, ओके। सो नाउ ये लाइन को जरूरत नहीं, कैलकुलेट कर रहे हैं हम, फर्स्ट J का करेगा फिर नेक्स्ट आएगा, कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद C को प्रिंट कर देते हैं। बिना कैलकुलेशन से मैंने प्रिंट करके दिखाया आप लोगों को, विदाउट कैलकुलेशन आई रन एंड शो द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, देन आफ्टर दैट विथ कैलकुलेशंस हाउ इट विल बी चेंज्ड,
कैलकुलेशन का साथ कैसे चेंजेस होगा। चलो ये रहने देते, देख लियो 987 याद रखना 00। अब रन करके देखते हैं। वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस वन। नाउ दिस टाइम आई वांट टू चेंज 1 2 3 4 फर्स्ट हो गया ना, 5 5 6 7 फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर लिखता हूँ 5 6 7 8। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, अभी प्रिंट नहीं हुआ, रीडिंग चल रहा है। देन सेकंड मैट्रिक्स 1 2 3 4। देखिए 5 6 7 8 1 2 3 4। देन एडिशन 5 plus 1 6 6 plus 2 8 7 plus 3 10 8 plus 4 12। ये कैसे हो रहा है? हमने एक लूप लिखा है, उसको बाहर लेकर आता हूँ, जो कोडिंग में लिखा वही लेकर आता हूँ। सपोज पीपल्स आर कंफ्यूजिंग, आपको लगता है फिर बाद में चेंज करना होगा। देयर इज नो मोर चेंजेस कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इस कोडिंग का द्वारा है। ये तो सी को प्रिंट करने लगा। कैलकुलेशन के लिए क्या कोडिंग लिखा हमने इसमें, अभी अभी लिखा एक लूप, ये वाली। This is the calculation. For I is equal to 1 to 2, for j is equal to 1 to 2, c of I comma j is equal to value of a of I comma j plus value of b of I comma j। अगर इसको और आसान तरीके से समझने के लिए क्या, सबसे आप शुरू से आप ध्यान रख रहा होगा, मैं आसान रख रहा हूं। कैसे? अगर सपोज इसको क्या है, c of I comma j is equal to a of I comma j, ऐसे c is equal to a plus b लिखते हैं हम। दो नंबर्स को जोड़ के c का अंदर स्टोर करना, मान लीजिए c is equal to a plus b। अगर सिंपल सिंगल नंबर की बात करते हैं हम, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर बी, दोनों जोड़ के सी का अंदर रखते हैं। अब सिंगल नंबर का जगह पर मैट्रिक्स एज्यूम करिए, फर्स्ट मैट्रिक्स ये, सेकंड मैट्रिक्स बी, सी थर्ड मैट्रिक्स। सो सी का अंदर स्टोर करने के लिए सी ऑफ आई कामा जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई कामा जे प्लस बी ऑफ आई कामा जे। अब इसको न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू फंक्शन ऐड किया बस। अब आई कामा जे होता है क्या, प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया मैंने। आई वैल्यू फर्स्ट रो, जे वैल्यू कॉलम। आई वैल्यू 1 होने के समय पर 1 कामा, जे वैल्यू 1 होने के बाद 1 1 कामा 1 मींस ए मैट्रिक्स के अंदर 1 कामा 1 5, बी मैट्रिक्स के अंदर 1 कामा, सपोज एक ही समझा दूंगा मैं, i इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टाइम, j इज इक्वल टू 1। देन यू कैन सब्स्टिट्यूट। आप इस वैल्यू को इसके सामने i और j का जगह पर सब्स्टिट्यूट करिए। c ऑफ i कामा j, दैट मींस c ऑफ 1 कामा 1 हो गया ना, क्योंकि i वैल्यू भी 1 है, j वैल्यू भी 1 है। ये ऑफ i वैल्यू क्या 1, j वैल्यू 1 प्लस b ऑफ i वैल्यू 1, j वैल्यू 1, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1। अब इज इक्वल टू आ गया तो लेफ्ट साइड पोर्शन कंप्लीट करेगा, सॉरी लेफ्ट साइड पास करेगा, राइट साइड एग्जीक्यूट करने के बाद। राइट साइड क्या, a ऑफ i कामा 1 कामा 1, ये रहा फर्स्ट मैट्रिक्स 1 कामा 1 मींस इनडायरेक्टली क्या होगा इधर 5 प्लस b ऑफ 1 कामा 1 1 6 ड्यू टू दैट रीजन ये 6 कहां लेकर जा रहा है, c ऑफ 1 कामा 1 मींस थर्ड मैट्रिक्स c का अंदर फर्स्ट एलिमेंट का से वैल्यू स्टोर कर देता है। फिर से वैल्यू स्टोर करने के बाद ए वैल्यू बढ़ेगा, आई तो 1 चल रहा, कॉलम संख्या बढ़ेगा, फिर इधर साइड वैल्यू को स्टोर करेगा 6 प्लस 2 8 8, इस तरह लूप बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूं आप लोग सबका समझ में आया होगा। अगर आपने एक लिखा है, फिर 3 को क्या करना, 3/3 कॉलम्स को मैनेज करना पड़ेगा आपको बस। You will, you people please try to implement 3/3 मैट्रिक्स एडिशन। 3/3 मैट्रिक्स एडिशन इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, 3 कामा 3 लिखिए बस, जहां जहां पर 2 3 कर दीजिए, लेकिन ये प्रिंट करते समय पर एक बढ़ाना है इधर, j इज इक्वल टू +4, j इज इक्वल टू +7, क्योंकि और एक एलिमेंट इधर डिस्प्ले करेंगे हम थर्ड कॉलम, तो गैप d में आ जाए, तो क्या कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप मैनेज करिए। ओके फ्रेंड्स, anybody want to having any doubts, I want to please or
Time is enough. No problem. 1 minute. Anybody suppose having any doubts, you can please raise to me. आपके पास किसी के पास कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो. नेहा नंदी. नेहा नंदी, गुड मॉर्निंग. Yes, sir. Good morning, sir. बाबू आपका क्या डाउट है? नेहा प्लीज, आई एम आस्किंग व्हाट इज योर डाउट. आपने हैंड राइज किया ना, वैसे ही हैंड राइज किया क्या? हेलो नेहा. नेहा. Okay, no problem. Anybody? I want to conclude this session. Hand over to Nimi sir, because another session is started the same time, 11 to 12. If anybody having any doubt, then please. Last time, one of the student, Namrata, cannot identify her. उसको पहचान नहीं पा रहा. नम्रता है क्या? पूजा. पूजा is there, then please unmute and speak with me. पूजा है तो बात कर सकते हो. नम्रता. मनीषा CSJ. मनीता. मनीता जी, गुड मॉर्निंग. हेलो. Hello. Manita, good morning. Oh. Good morning, sir. Manita, you are from NST Noida, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Manita, please tell me. I have little bit time, 1 or 2 minutes only. So आपको ये अरे समझ में आया क्या? मल्टी डायमेंशनल अरे. Yes, sir. Don't tell forcefully. आप जबरदस्ती से मत बताइए. आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. How to declare dimensional, 2 dimensional array? 2 dimensional array को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? अरे बाबू स्क्रीन पर तो है, स्क्रीन क्लोज कर दो. टीम एरे नेम ब्रैकेट्स के अंदर 2 डायमेंशन देना है, फर्स्ट रो के लिए कॉमा सेकंड कॉलम के लिए. तो हाउ टू रीड ए मैट्रिक्स एलिमेंट्स एंड हाउ टू राइट इन एक्सेल शीट, जस्ट आई वाज एक्सप्लेन सेकंड टाइम. Okay. आपको समझ में आया क्या? Yes, sir. यू हैव लैपटॉप? No, sir. ओहो. हॉस्टल है सर, हॉस्टल में ही रह गए. ओहो, वजन ज्यादा हो गया होगा, अपना हॉस्टल में रख के चले गए. नहीं सर, हाँ जी. मैं पहले ही आ गई थी लॉकडाउन ओहो. से. तो छुट्टियां बोनस मिल गया आपको? Yes, sir. ओहो. चलिए बाबू, प्रैक्टिस करना, नहीं तो सुनते रहना, लिखते रहना, तब समझ में आ जाएगा. मैं ग्रुप में स्क्रीन कोडिंग्स वगैरह भेज रहा हूँ, तो आप लोग नोट करिए, जिसका पास लैपटॉप से प्रैक्टिस करिए. Okay, sir. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू. I Okay, want to sir. hand out the Nimi Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you for all of you. Praveen sir. Hello. Kumar Nandi. Thank you, sir. Sir, can I continue? That the next section is there. Sir, okay, sir. I concluded my section. I finished it.